شروع ہو گیا. ریکارڈ شروع ہو رہا ہے. ہاں بنداز بات کیجیے. اچھا وہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں احناف کا کیا موقف ہے؟ کلام نفسی آپ عبد الوہاب بھائی کو اچھے سے سمجھا دیجیے. اس طرح سمجھائیے کہ مطلب عام ہم لوگ سمجھ جائیے اچھے سے. میں نے احناف کیا، احناف ایک اصول مانگا ہے، اصول کا جو لینا دینا قرآن و حدیث سے نہیں ہے. احناف کے اندر میں نے احناف بولیں گے تو اشعری اور ماتریدی ٹھیک ہے، پہلے ان دونوں کا سمجھ لیتا ہے. مطلب عقیدہ میں احناف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو نہیں کرتا ہے. ایک اصول بنایا ہے، صرف فاتحہ نہیں پڑھنا نہ تو نہیں وہ دوسرا چیز ہے. میری بات کو سمجھیے. عقیدہ جو مطلب جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس میں احناف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ ان کا عقیدہ اچھا تھا یا برا تھا؟ تو پھر فالو کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر برا تھا تو پھر ان کو امام اعظم کیوں مانتا ہے، ان کی تقلید کیوں کرتا ہے؟ اگر اچھا تھا تو پھر فالو کیوں نہیں کرتا ہے ان کو عقیدے میں؟ سوال پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیدے میں فالو نہیں کرتا ہے. عقیدہ میں جیسے کہ اشعری اور ماتریدی یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد کے جو ہے افراد ہیں. کئی سو سال بعد وہ لوگ آیا ہے. تو اگر کوئی کلیم بھی کرے گا کہ یہ نہیں اشعری اور ماتریدی تو غلط ہو جائے گا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماتریدی دو امام کی طرف نسبت ہے، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور الماتریدی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں سے پہلے ہے. کوئی اگر بولے گا کہ یہ لوگ مطلب اشعری اور ماتریدی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بولے تو غلط ہے وہ لوگ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ڈیولپ ہو کر کے بعد میں آیا. ہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے. اور احناف مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قابل کے خلاف ہے. تو حقیقت میں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ وہ سلف ہے، سلف ہے، صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ تو بول رہے کہ ہاتھ ہے، چہرہ ہے. وسلم اگر غلط ہے پھر ان کی تقلید کیوں کرتا ہے؟ چل جواب دے. اگر ان کا عقیدہ غلط ہے پھر تقلید کیوں کرتا ہے؟ غلط عقیدے والے کی تقلید کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی ہے. اس کا مطلب صحیح عقیدہ اس کا تھا، ہے نا؟ تو صحیح عقیدہ تھا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اب ہے سن، آپ نے کہا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم لوگ کے ہاتھ کی طرح. یہی بات ذہن میں آیا. کرنے کا ریزن نہیں ہے. جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے نا تو وہ لوگ سوچتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ مان لیں گے اللہ کے لیے تو یہ تسبیح ہو جائے گا. تو پہلا سوال یہی اٹھے گا کہ ہم مخلوق کے مشابہ کیوں مانیں؟ ہم کو تو ہاتھ ماننا ہے اور کیفیت کو اللہ. نہیں یہاں پر میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے. آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کو بولا جاتا ہے کہ ابلیس تو نے مطلب کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی کہ اے ابلیس تم کو کس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ہاں ہاتھ ہے لیکن یہ ہم لوگ کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. یہ ہے صحیح عقیدہ. اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے زمین و آسمان کو اپنے مٹھی میں لے لے گا. زمین و آسمان کو اپنے مٹھی میں لے لے گا. تو یہ ہے اگر اس کو بولے گا کہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں لے لے گا تو سوال اٹھتا ہے کہ ابھی تک کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ہاں قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے مانے یہ میں ابھی بھی ہے. تو اس دن کیا اسپیشل ہو؟ اس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنا مٹھی میں لے لے گا. اس دن کیا اسپیشل ہو؟ بالکل پوائنٹ والی اللہ بات کے کنٹرول میں آج بھی زمین و آسمان ہے، تب بھی رہے گا. ہاں. مٹھی میں لینے کا مراد وہ حقیقی ہے، اس میں قبضہ قدرت کو لے کے آنا ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ احناف تعویل کرتی ہے کہ نہیں بھائی ہاتھ سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قدرت سے پیدا کیا. قدرت سے تو سب کو پیدا کیا ہے، پھر اس میں آدم علیہ السلام کی خصوصیت کیا رہی؟ ہاں سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے دونوں ہاتھ سے. اور اللہ تعالیٰ کا دونوں ہاتھ داہنا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ داہنا ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے بالکل ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو یہ ہم جو آپ کو نہیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم میں نہیں ماننے سے کیا پرابلم آئے گا. آپ کو جو نسخہ دیے تھے میں نے بتایا تھا طریقہ
मान लीजिए कल वाला 2026 में है हाँ हाँ और 2027 में नहीं है, तो क्या अल्लाह को मालूम है कि हम 2027 में नहीं है और 2026 में है? आपका जवाब तो होना चाहिए हाँ। हाँ अगर हम बोलेंगे हम 2027 में हैं जबकि हम नहीं हैं, नहीं है। और अगर हम ये दावा करेंगे हम 2027 में हैं और अल्लाह जानता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हम 2027 में भी नहीं है। 2027 मेरे लिए नहीं आया और ये मेरे लिए बदहियात में से है कि हम 2027 में अभी पहुँचे नहीं हैं, तो मेरे लिए तो यकीनी है। अगर कोई मतलब इस चीज़ को मानेगा तो उसको बोलिएगा ये बात को कि अल्लाह ताला जो है अभी इस वक्त तो आगाह नहीं है। अल्लाह जानता है, ये इल्म में से, हम इल्म का बात नहीं कर रहे हैं, अल्लाह A to Z जानता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अल्लाह ताला को अभी आगाही हासिल नहीं है मेरा 2027 का, उसको मालूम है मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, आगाही का बात कर रहे हैं। तो आगाही क्या है कि हम 2026 में है। आगाही कब होगा? जब 2027 आएगा। इल्म के साथ कोई चेंजिंग नहीं है। इल्म अल्लाह का अज़ल जो हम मानते हैं वो अपनी जगह बरकरार है। आगाही तो आगाही अभी नहीं होना, अब उस वक्त होना, ये अल्लाह ताला को ऑटोमेटिक टाइम के में लेके आता है। इससे टाइम बॉन्ड साबित नहीं होता है ना कि अल्लाह ताला टाइम के पाबंद में नहीं, पाबंद में नहीं है। क्या समझ में आता है इससे? अभी आप कंफ्यूजन हो गया। अभी इस वक्त आप 2026 में हैं, 2027 में है आप? नहीं है। तो अल्लाह को आगाह है ना कि आप 2026 में है। आप एक काम की इसको लिखिए, जाहिद भाई 2026 में है और 2027 में नहीं है। सेम स्टेटमेंट आप दीजिए 2027 में जा करके कि जाहिद भाई 2027 में है और 2026 में नहीं है। नॉलेज समय के साथ बदलता है। इंसान का अल्लाह ताला का नहीं, माने वो चीज़ नहीं हो रहा है। देखिए नॉलेज का दो हिस्सा है, एक एक्टिव नॉलेज है। मान लीजिए कि हम अभी घर जाएंगे, आपको मालूम है घर जाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक अलग नॉलेज है कि हम जाएंगे, गए नहीं है, लेकिन जैसे हम घर पहुंच जाएंगे तो हम आगाही में आ जाएंगे कि अब हम घर पहुंच चुके हैं। हाँ। तो जो जाएंगे हम घर और पहुंच गए, दोनों का जो इवेंट है, इवेंट सेम है, इवेंट चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये जो एक्टिव नॉलेज है, अभी एक्टिव नॉलेज में हम कहाँ हैं? आपको दुकान में है। और जैसे हम घर पहुंचेंगे, टाइम जैसे अभी मान लीजिए कुछ भी टाइम हो, 1 घंटा के बाद हम घर जाते हैं, समय बदला, सिचुएशन जो है अलग अलग हुआ, नॉलेज सेम है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? तो मतलब सिचुएशन चेंजिंग अल्लाह ताला के यहाँ भी होती है। हाँ, एक पेड़ छोटा देखे थे आप, 10 साल के बाद देख रहे वो बड़ा हो गया। पेड़ वही है, समय के साथ इवेंट चेंज होता है, नॉलेज भी चेंज होता है। एक्चुअल नॉलेज चेंज नहीं हुआ। जैसे कि ये छोटा सा पेड़ था, बाद में बड़ा हो गया। अल्लाह के नॉलेज में तो A to Z है, किस तरह से पेड़ पैदा हुआ, कब मरेगा, क्या होगा, अल्लाह तो जानता है। अल्लाह का उस नॉलेज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन जो समय के साथ बदलाव है, अल्लाह ताला उस बदलाव को भी देख रहा है, उसको जानता है, उसका हर एक इवेंट को जानता है, जिसको बोलते हैं नाउ, अभी। तो क्या अल्लाह ताला अभी हम दोनों जो बात कर रहे हैं, देख रहा है, सुन रहा है, जानता है कि नहीं? बिल्कुल जानता है। आप समझिए टाइम को, अगर अल्लाह ताला से मुतलकन बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के लिए ये अभी का ये नहीं, वो जो एक और एग्जांपल दिए थे, वो अल्लाह ताला जो है क़यामत में आएंगे और फरिश्ते जो है सफ़ ब सफ़ खड़े होंगे। हाँ, तो कोई भी मैंने अल्लाह ताला का फ़ैल को ले लीजिए। हाँ, अल्लाह ताला फ़ैल करता, आप भी मानते हैं, ये दुनिया तो अजल से नहीं है, एक टाइम इसमें अहनाफ का क्या अकीदा है कि अल्लाह ताला आएंगे, नुज़ुल फरमाएंगे? नहीं, वो लोग उस उसूल को पहले लेकर के आया कि जिस ज़ात में या कोई चीज़ में अगर हवादिस का क़याम होगा तो वो खुद भी हादिस चीज़ होगा। तो मतलब इस उसूल को पहले लोग पकड़ लिया। अब इसके अंदर नुज़ूल हो या इस्तिवा हो या अल्लाह ताला का कलाम करना हो या अल्लाह ताला का सजा देना हो, जिसमें फैल सामने जाता है, अच्छा। इनकार करता है, नहीं मानता है। यही तो सबसे खतरनाक है कि आदमी इसमें गौर फिक्र कर ही नहीं रहा है। अगर अल्लाह को किसी को सजा देना है तो अजल से दे रहा है, ये किसी अच्छा, अहनाफ का अकीदा मतलब जो कुछ अल्लाह ताला को करना था एक बार में सब कुछ कर लिया, एक इंस्टेंस में कर लिया, बस हो गया खत्म। और अब जो हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। ये हम लकड़ी खड़ा किए और इनफिनाइट लकड़ी खड़ा कर दिया, एक को हम गिरा दिए, बाकी ऑटोमेटिक गिरते चला गया। ये तो देखे ना। हाँ। ऐसा ही उन लोग का नजरिया है। अल्लाह एक फेल को करने के बाद दूसरा फेल करता है, ये उन लोग का अकीदा नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अकीदा है, तो ये आप फेल को मान रहे हैं, फिर तो ये अकीदा उनके खिलाफ है ना कि अल्लाह ताला जो है सबसे पहले कलम को पैदा किया, हाँ, फिर हाँ, कहा इनके कि खिलाफ। लिखो,
है ना, आसमान जमीन को बनाया, फिर खिलाफ अर्श है, पर और मुस्तवी हुआ। पहली बात ये है वो लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। फेल में जो तरकीब पाई जाती है कुरान हदीस के अंदर, लेकिन अहनाफ का अकीदा उनके मुताबिक नहीं है। हम लोग का क्या जवाब है कि ये हम लोगों के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए है, अल्लाह के लिए ऐसा नहीं है। अरे भैया अल्लाह जब बता रहा फिर अल्लाह के लिए कैसे नहीं है? इसका मतलब अल्लाह अपने बारे में हम लोगों को गलत तो बता रहा है। मतलब अहनाफ का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जो कुछ कर चुका है बस एक ही बार में कर चुका है। अल्लाह टाइम में फेल करता है या नहीं, सिंपल सा। हाँ, अल्लाह ताला जमीन आसमान को कब बनाया? जब भी बनाया उससे 50,000 साल पहले क्या बनाया? ये मुक़य्यद तकदीर। दो हालात हुआ। हाँ, दो हालात होना ही वक्त अल्लाह भी को गुजरा। automatic इसमें टाइम में लेकर के आ रहा है। तो टाइम में जब लेकर के आता है तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ का इनकार करेंगे कि अल्लाह ताला का जो वजूद टाइम का मुताबिक है। हाँ। लेकिन अल्लाह ताला फेल नहीं करता है। फेल तो बिल्कुल क्या करता हो है, जाएगा? अल्लाह ताला फेल करता है और भी टाइम के साथ करता है। बिल्कुल, ये तो कुरान हदीस से साबित है भाई। कोई चीज़ अगर टाइम से मुतलकन पाक हो तो टाइम के साथ कुछ नहीं कर सकता, ना वो पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मतलब अहनाफ का ये जो अकीदा है कि अल्लाह ताला ये वक्त से पाक है, ये गलत अच्छा, अकीदा अभी है। के कॉन्टेक्स्ट में अहनाफ जब भी हम लोग बोलते हैं इसका मतलब देवबंदी करेंगे, वो एक्चुअल अहनाफ नहीं है। जैसे वो क्या नाम है, अकीदा तहाविया का शरह करने वाला आलिम वो हनफी इब्न है। अब्दुल अजीज अल हनफी हाँ, वो हनफी है लेकिन सलफी हनफी है। रहमहुल्लाह। हनफी होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सलफी हनफी बहुत कम तादाद में। सलफी हनफी यानी सऊदी कि अरब में हनफी है रफ़ैदन करने वाला। अब पूछेगा रफ़ैदन कैसे करता है? हनफी तो नहीं कर सकता है। तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह उस कौल को लेता है कि मेरे खिलाफ मतलब मेरा जो कौल सही हदीस के खिलाफ हो तो उसको दीवार पे ले मारो और सही हदीस पे अमल करो। उस अमल को पकड़ के चलने वाला ऑटोमेटिक हनफी भी है और सलफी भी। नहीं, वो जो अहनाफ का अकीदा बोल रहे थे अल्लाह ताला का कलाम, हम्म। कलाम नफ्सी वाला क्या था वो? देखिए कलाम नफ्सी सबसे पहले आपको पता करना हो किधर से आया, कौन लेके आया। तो सबसे पहला बंदा जो कलाम नफ्सी लेकर के आया था वो इब्न कुल्लाब था। ये जो असरी मजहब है इब्न कुल्लाब। हाँ, इब्न कुल्लाब। कल्ब का माना होता कुत्ता। नहीं तो वो कल्ब मान लीजिए, इब्न कुल्लाब उसका नाम है। अच्छा, सही थे कि गलत आदमी थे वो? नहीं, ये अकीदा लेकर के आया तो सही हाँ, आदमी किसे? अच्छा, मतलब अच्छा। मुबतदीन में से अच्छा 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 अच्छा। बहुत सारा अकीदा उसका सही भी था और बहुत सारा गलत भी था। तो क्या लाया वो, मतलब क्या बताया वो? मैंने बहुत कोई बोलता है कि इब्न कुल्लाब जो है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का शागिर्द नहीं है। आप इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जितना भी किताब उसके अंदर देख सकते हैं, इब्न कुल्लाब और उसका जो असातिज़ा जो साथी सब था उस सब से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह दुश्मनी रखते थे। इन तो- सबसे दूर रहने के लिए बोलते थे। कलाम नफ्सी और वो कौन सा, इजाद करने वाला वो क्या है इसका डेफिनेशन क्या? कलाम नफ्सी को आप मान सकते हैं अल्लाह के इन सब ताबीर दे दीजिए वही बने। मैंने इसको अब तोड़ नहीं सकते हैं। क ख ग ये अलग अलग पार्ट हो गया ना, तो अल्लाह का जो कलाम है क ख ग से नहीं है, आवाज़ के साथ नहीं है। अच्छा, ये अहनाफ का अकीदा है कि अल्लाह ताला के कलाम में ना हर्फ है ना सौत है। हर्फ है ना सौत है, वो सिंगल चीज़ है। अब वो आप तो सुन, अगर अल्लाह ताला के कलाम में हर्फ नहीं छे, अलिफ लाम मीम, अलिफ को हर्फ है कौन नहीं को, ये सही है। ये हदीस के अंदर भी है, अलिफुन हर्फुन लामुन हर्फुन मीमुन हर्फुन, ये एक एक हर्फ में 10-10 न किए तो हर्फ भी लो, ये अल्लाह के कलाम को, तो अल्लाह के कलाम में हर्फ हुआ। और सौत की हदीस सही बुखारी के अंदर है कि अल्लाह ताला के कलाम को हर कोई प्रॉब्लम सुन बहुत लेगा। सारा है जाहिद भाई, ये लोग अपना उसूल को समझता ही नहीं। अपना उसूल को जैसे समझ लेगा उस दिन ना बात करेगा। जैसे कि एक आदमी आकर के बोलता है कि अल्लाह ताला सौत के जरिए बात करता है। अब यहाँ पर लोग ये तफवीज़ है, मतलब कैफियत मालूम नहीं है। तफवीज़ उसको नहीं बोलते हैं। तफवीज़ का मतलब होता है ये चीज़ कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, हम ना इस पर इजाफा करेंगे और ना घटाएंगे और सिर्फ अल्फाज को मानेंगे, मीनिंग और उसका कैफियत अल्लाह के हवाले कर देंगे। ये तफवीज़ है। वो लोग इस चीज़ को समझता ही नहीं। असलाफ लेकर के आया बहुत सारा मीनिंग, वो मीनिंग लेकर के आया। हाँ, वो मीनिंग लेकर के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका तफवीज़ नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे, बल्कि उसको हकीकत पर इसमें मान रहे हैं। अगर आप मीनिंग मालूम है तो ऑटोमेटिक कैफियत आ जा रहा है। कागज़ कलम भी नहीं, चीज़ दिखाते हैं आपको। अगर हम चारों इमाम को छोड़ देंगे और कुरान हदीस को डालकर समझेंगे तो हो पाएगा? ये आपको उलमा का तो चाहिए ना, उलमा को मानना पड़ेगा। अगर जाएंगे इमाम की तरफ तो फिर क्या? अकीदा जो चारों मजहब में जो इमाम का अकीदा है वो ठीक है। चारों इमाम सब सही अपना जगह। नहीं, अकीदा सेम है, अकीदा में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कलम फिक्र में दलील के बुनियाद पर जो कलम इख्तिलाफ होता है। हाँ मिल गया।
लीजिए। हम जो बताना चाहते हैं समझ में आएगा कि नहीं। आपको इसका कैफियत बताना है और इसका कैफियत बताना है। ट्री मतलब दरख्त, हाँ दरख्त, कैफियत बता सकते हैं? कैफियत ये है हाँ, ये तो कि हाँ जो सामने नजर आ रहा है, शाख है, पत्ता हाँ, है, हाँ, जड़ है, हाँ, कैफियत बता पा रहे हैं ना। अब इसका कैफियत बताइए। ये तो समझ नहीं आ रहा क्या है। हाँ, तो समझने के लिए पहले क्या चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए। हाँ आपको मीनिंग पता था, आप कैफियत बता दिए। अब यहाँ पर मीनिंग पता नहीं है तो आप कैफियत नहीं बता सकते हैं। बिना मीनिंग का जो टेक्स्ट है कुरान हदीस में, जो सिफात है, बेमायने है, बेकार है। ये लोग जो हनफी लोग जो मैंने बोलता है कि ये मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है, मैंने नहीं मालूम मीनिंग, अल्लाह के हवाले और कैफियत का इनकार, तो उसका मतलब ये कैफियत का इनकार। हाँ, कैफियत का इनकार सिरे से है ही नहीं। तो अगर कैफियत का इनकार होगा तो फिर तो गलत अकीदा हो गया। नहीं, इधर भी तो गलत अकीदा हो गया ना। मान लीजिए यद है, यद हो गया, ठीक है। अगर इस यद को इस पिक्चर में लेकर के आइए कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, हाँ तो क्या फ़ायदा है? तो फिर हनाफ ने तर्जुमा कैसे किया हाथ का? हाँ, वही तो बात तर्जुमा है। किया है हाथ तो का। उन लोग के नज़दीक यही है, मीनिंग को अल्लाह के हवाले छोड़ दिया हम्म। और कैफियत का इनकार कर दिया। इन्ना लिल्लाहि लेकिन व मीनिंग ही नहीं रहेगा तो कैफियत किधर से आएगा? हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ट्री है, ठीक है, अब इसको हम अल्लाह के सिफात के साथ ये कर देते हैं, यद है, ठीक है। तो यद है, मीनिंग आ गया, कैफियत नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? कैफियत के बारे में कुरान और हदीस में नहीं आया है, अल्लाह ने नहीं बताया, हम लोगों ने नहीं देखा, तो नहीं मालूम, अननोन है, सिरे से खारिज नहीं करते, है नहीं मालूम। तो ये है, असलाफ बोलता है कि अगर इस मामले में तफवीज़ किया जाए, तो जो असलाफ लोग वर्ड लेकर के आया है, वह हुआ माकुम ऐना माकुम, तुम जो लेकर के आया, फिर इससे मुराद क्या? इल्म। तो उसको कुछ मालूम है तभी ना इल्म लेकर के आ रहा है। इस्तिवा से मुराद क्या लेते हैं? इर्तिफा, उलू। ये एक मीनिंग बयान करता है। मीनिंग का क्या है? कैफियत होता है। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को उस कॉल को लेकर के आइए, माना मालूम है, कैफियत मजहूल है, सेम है, वही चीज़ नहीं जानने से इनकार करना। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कौन इनकार कर रहा है? यही अलमानी रहिमहुल्लाह इसको लेकर के आते हैं कि अगर हम कैफियत का मुतलकन इनकार कर देंगे, किसी तरह से है ये नहीं है, तो फिर इस चीज़ का वजाहत करना मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा अलमानी रहिमहुल्लाह। तो मतलब खुलासा कलाम ये है कि अहनाफ का अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कलाम कि नफ्सी को वो लोग लेके जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से साबित करे। अक़ीदा का मतलब क्या होता है? जो कुरान और हदीस में जो nuसूस आया उसके ऊपर हम लोग ईमान लेकर के आएंगे। कलाम नफ्सी कुरान और हदीस में किस जगह है, आप बताइए। मैंने थोड़ा देर के लिए हनफी बन जाइए और बताइए कलाम नफ्सी किधर है? दिमाग में अपने अकल से करता ना वो लोग। कुरान एक अरबी जुबान में है। जुबान क्या होता है? हादिस। जुबान क्या होता है? हादिस होता है। नहीं, वो कौल जो अल्लाह ताला कलाम नहीं कर सकते। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह जो लिखे हैं कि अल्लाह ताला का कलाम जो है, ये सबसे बढ़िया इसमें इमाम सजीदी रहिमहुल्लाह का वो हर्फ सौद वाला जो है, इमाम सजीदी रहमहुल्लाह का इसमें बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। मैंने ये लोग अल्लाह ताला को कलाम करने वाला मतलब रब नहीं मानता है, मतलब गूंगा मानता है। गूंगा मानता है। मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट देखा था इस तरह का कि अहनाफ का जो अक़ीदा है के अंदर लिखा हुआ है कि वो लोग मतलब गूंगा टाइप का, मतलब वो लोग अल्लाह ताला के कलाम को जिस तरह से मानते हैं तो गूंगे की पहचान होती है, गूंगे की तरफ ले जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोग तो नहीं मानते हैं इसे। भाई सबसे अच्छा अक़ीदा सलफ़ सालिहीन का, अहले सुन्नत अहलुल हदीस का है। अशअरी मातुरिदी का अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। अच्छा, इमाम बुखारी वर्सेस अशअरी मातुरिदी, हाँ ये एक टॉपिक होना चाहिए। रहिमहुल्लाह के मुकाबले में इन लोगों को कौन तरजीह देगा? बोलिए। कोई नहीं देगा। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह अपना किताब के अंदर वो लेके आए हैं, वो हदीस लेकर के आए हैं। वो किताब तौहीद उनकी जो है, हाँ, उसमें लिखा है ना, खल्क़ व अफ़आल इबाद, ऐसी आवाज़ के साथ पुकारेगा जिसको दूर और पास वाले एक बराबर। वही हाँ सही बुखारी के अंदर हाँ और भी सुनेगा। यहाँ तक कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह का भी ये अक़ीदा था कि अल्लाह ताला के कलाम में हर्फ और सौत है, आवाज़ है। आदमी जो समझ नहीं पाता कि अलिफ लाम मीम इस कुरान में लिखा हुआ है, ये क्यों है? ये हर्फ है। ये अल्लाह ताला भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जिस ये से बात करते हैं उसके अंदर हर्फ है। बिल्कुल। तो इससे हर्फ आ गया, सौत तो आ ही रहा है। अल्लाह ताला
हक और सत्य। जिब्रील अलैहिस्सलाम सुने हैं, है ना। हाँ, तो ये तो असलाफ का अकीदा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से सुने हैं, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुने, इस तरह से चला हाँ, कलाम इसी पाक तरह से ही हम लोग के पास आया। हाँ। लेकिन अहनाफ का अकीदा है, ये जो जिब्रील इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह उस बात का तस्रीर में फरमाते हैं जिसमें ना कि अल्लाह ताला से कलाम शुरू होता है, अल्लाह से शुरू होने से मतलब होता है कि अल्लाह से सुना। लेकिन अहनाफ का अकीदा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नहीं सुना है ना, नहीं सुना है। माने ये उन लोगों का अकीदा है या अबू हनीफा रहमुल्लाह का? अबू हनीफा रहमुल्लाह के यहाँ इसमें मत लाइए। हनफी बोलते हैं तो देवबंद हाँ, हाँ, अहनाफ बात का तो अकीदा सही है कि अल्लाह ताला से नहीं सुना है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कलाम पाक को, बल्कि उसके अंदर दिल के अंदर डाल दिया, यही ना कलाम नफसी। जाहिद अल कौसरी ने लिखा है ना ये, हाँ, वो ले सकता है, उसको मानता है। अगर अबू हनीफा जाहिद अल रहमुल्लाह कौसरी अहनाफ का जो बहुत बड़ा आलिम है, वो कहता है कि जो कलाम पाक हम लोग के पास है ये वो मखलूक है, कलाम है जिब्रील, कलाम है ये मोहम्मद। मखलूक है। हाँ, उसने लिखा कि मखलूक है। कौन बोला? जाहिद अल कौसरी देवबंदी और बरेली का बहुत बड़ा आलिम है। तो मेरे ही नाम वो पे लोग अपना समझे। कि वो लोग क्या है ना, मैंने इस बात में होशियार बनने का कोशिश करता है कि जो हम लोग हैं उसके हम जो लोग नहीं समझ सकते एक्चुअल जो मफहूम है वो बता दीजिए ना, कि वो कलाम जो हमारे पास है जिसकी हम तिलावत करते हैं, आपको तो कल ही दिखा है ना। हाँ हाँ, ये लफ्ज़ी और हादिस है अकीदा में लिखा हुआ है और कि मखलूक है। कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है, हाँ, और वही के जरिए अल्लाह ताला ने ये हाँ, ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह नाजिल ने किया लिखा है। है। और जो नाजिल वही क्या शुदा होता है? चीज़ वही है, के जरिए? वही का मतलब होता है अल्लाह का हुक्म से जो अल्लाह ताला की बात जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह लाए, का हुक्म, अल्लाह ताला जो बात करते हैं, जो हुक्म होता है ना, उसको वही बोलते हैं। तो हुक्म है यानी अल्लाह ताला कुछ बोले, कलाम बोल के। अल्लाह ताला बात करता है, हाँ, लेकिन अहनाफ का अकीदा कि नहीं करता है। अहनाफ किसको बात मान रहा? मतलब देवबंदी फिर अली अबू हनीफा रहमुल्लाह का बात मानते हैं या अशारी दूसरे मातुरिदी, के बात मानते हैं अबू अबू हनीफा? मंसूर अल मातुरिदी का बात मानता है, जो आदमी मजबूर है, उसके बारे में कोई कुछ पता नहीं है, सच्चा है झूठा है, कौन है, कुछ पता नहीं है। हम लोग का जो जरह तादिल का जो किताब है, जिसमें हम लोग देखते हैं ना कि ये सिक्का है, ये सुदूक है, जो देखते हैं ना, उसके बारे में हम लोग का जरह तादिल का जो किताब है खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये तो आदमी के बारे में कोई नहीं जानता कौन है। मुफ्ती शकील साहब इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला अपने हर को मतलब जुबान से बोले हैं? अच्छा, हम लोग का जो इमाम उनसे साहब बहस कभी नहीं किया, करेंगे तो हम लोग का इंशाल्लाह जो मान इमाम साहब है लेंगे। ना, ये अपना जो खुतबा से पहले जो तकरीर देता है ना, उस तकरीर में कई मरतबा ये बोल चुका है कि अल्लाह आवाज़ के जरिए कलाम हाँ हाँ, इमाम साहब ना, हाँ, मिस्टेकनली कई बार बोला। तो कहने का मतलब है जो हम लोग का बेसिक आलिम है लोकल में ना, वो लोग ठीक ठाक मानता है, हाँ। लेकिन जब किताब खोल करके दिखाएंगे ना, तब जाकर के वो जबरदस्ती गलत मानने पर मजबूर हो जाता है। उससे पहले सही मानता है, उससे पहले ना सही मानता है। ये तो हुआ कि जबरदस्ती। अच्छा, एक काम कीजिए ना, जाहिद अल कौसरी वाली इबारत आप निकाल पाइएगा, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। नहीं, आप क्या कीजिए ना कि ये जिब्रील अलैहि सलाम जो तहरीर है, इमाम तहावी रहमतुल्लाह, और ये लोग क्या बोला कि नहीं है, उस किताब को वो लोग भी मानता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड के साथ मानता है। शमशेर भाई को बोले थे कि आप अपना अकीदा तहाविया में जो लिखा वो बना लीजिए, सेफ है, कोई भी सेफ है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ उस चीज़ को वो लोग नहीं मानते। वो लोग बाद में आकर के ना वो एक्सक्यूज नहीं होता है इंग्लिश वर्ड में, वो निकाल के बताएगा नहीं ये तो ठीक है लेकिन ऐसा है। तो वही वाला बात है जिसमें कि आवाम आके आपसे पूछे और आप अगर असली मातुरिदी हो तो आवाम को आप बताइएगा अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श के ऊपर, और अपना मजलिस में ये बोलेगा नहीं अल्लाह ताला लामा कहाँ है। हाँ हाँ, अहनाफ का ये हाँ डबल स्टैंडर्ड बताऊँ। अहनाफ के आलिम वो खुद इकरार करते हैं, अहनाफ के आलिम कि हम लोग का अकीदा कि अल्लाह ताला किसी जगह नहीं है, लामकान है, लेकिन अवाम को बताते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। कल तक ये तो हुआ कि कॉमेडियन कर रहा हाँ है। भाई, हाँ? 7 साल के दौरान में बार बार यही देखते थे कि देवबंदी को अल्लाह ताला को हर जगह मानता है। हाँ, और ये हालिया जो रिसर्च सामने आया है, देवबंदी का अकीदा मैंने इस चीज़ में खत्म हो गया, हर जगह खत्म हो गया। अब हाँ। हम लोग का और बरेली के बीच में ये धीरे धीरे चेंजिंग हो रही है उनके अकीदे में। आप लोग लामकान में आ गए। हाँ। लामकान में भी है। पहले सुनते थे ना कि अल्लाह ताला हर जगह है, हाँ, हाँ? अब वो चेंज कर दिया अपना अकीदा कि हर जगह नहीं बल्कि लामकान है। वो लोग क्या कहता पता है, एक मैं वीडियो सुन रहा था कि अल्लाह ताला हर जगह है लेकिन लामकान है। इसका मतलब क्या है? मैंने अल्लाह ताला हर जगह, हाँ। अल्लाह ताला हर जगह नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह नहीं है। वो आई प्लस टीवी है, उसमें एक बंदा आया था गुफ्तगू करने के लिए,
बात कर रहा था कि अल्लाह ताला हर जगह है लेकिन लामकान है। भाई मैं जाहिद अल कौसरी वाली इबारत बता रहा हूँ मफ़हूम, ठीक है, तर्जुमा सुन लीजिए। जाहिद अल कौसरी लिखते हैं वल्वाक़ अन अल कुरान फ़िल लौह व फ़ी लिसान जिब्रील अलैहिस्सलाम व फ़ी लिसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलसिनति साइर तालीन व क़ुलूबिहिम व अलवाहिहिम मख़लूक़ुन हादिस मअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तर्जुमा सुनिए कि वाकई में ये जो कुरान है जो लौह महफूज़ में है और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में है और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में है और जो सारे तिलावत करने वालों की ज़ुबान में है, दिलों में है कुरान शरीफ, ये मखलूक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तग़फिरुल्लाह। हादिस है, मुहदस है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो जाहिद अल कौसरी मक़ालात अल कौसरी के अंदर ये इबारत मौजूद है कि अल्लाह ताला का जो कलाम है ये कुरान शरीफ, जो हम लोग तिलावत करते हैं, जो दिलों में है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में है, जो नबी की ज़ुबान में है, ये मखलूक है। हालांकि कलाम पाक को मखलूक बोलना कुफ्र है। सलफ़ सालिहीन का इस पर इजमाई अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का कलाम गैर मखलूक है, जो मखलूक कहे वो काफिर है। वो इमाम हर्ब बिन करमानी ने क्या ये देखिए आलिम होगा, वो अपने किताब के अंदर लिखा है कि हर जिहत के एतबार से कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। जी बिल्कुल, हर जिहत से अल्लाह ताला का कलाम है और गैर मखलूक है। अल्लाह ताला का कलाम गैर मखलूक है। लेकिन जाहिद अल कौसरी क्या मानता है, देवबंदी और बरेली को बहुत बड़ा आलिम को जाहिद अल कौसरी, कि वो कलाम जो नबी की ज़ुबान में है, वो कलाम जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में है, वो कलाम जो तमाम तिलावत करने वालों की ज़ुबान में है, वो कलाम जो हमारे दिल में है कलामुल्लाह, वो आगे तमीम में क्या लिखा हुआ है ना, कौसरी के इस तलबीसाना कलाम से मालूम हुआ कि कौसरी की जरकशी के नज़दीक वो कुरान मखलूक है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने तिलावत करते थे। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब इससे घटिया अक़ीदा और क्या चाहिए? ये असलाह का किताब भरा पड़ा है, लिखा हुआ है गैर मखलूक, गैर मखलूक, गैर मखलूक, हर कोई तावील के ऊपर भी रद्द है और तफवीद के ऊपर भी रद्द है। वर्ड का इजाफा है ना। मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो भाई जो सुनने वाले हैं अपनी इस्लाह कर लीजिए कि अहनाफ का क्या अक़ीदा है और सलफ़ सालिहीन का क्या अक़ीदा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।